somebody has exhausted 2-3 attempts, ठीक है, अगर और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली अगर आपकी एक बार भी प्री नहीं निकला है, आप पैरेलल एग्जाम्स देखना शुरू कर दो। If we talk about career in edtech sector, अभी यहाँ पर अगर किसी aspirant को अपना career बनाना है, तो what are the different career options available for an aspirant? जॉब्स हमारे पास भी बहुत सारी हैं, बट व्हाट वी लैक एक्चुअली इज द स्किल्ड पर्सन। आप बहुत सारे मतलब साइड जॉब्स कर सकते हो सेम इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे यू कैन बी कंटेंट मेकर, यू कैन बी एन एवेलुएटर। इतनी सारे एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं that you can learn within 2-3 months, and that will give you a decent job, a freelance job, maybe approximately 50 to 60,000 a month आपको easily मिल जाएगा। Parents are very reluctant to send their kid to this city. So I don't think कि there is any point coming to Delhi also. edtech sector में अगर हम job की बात करें तो यहाँ पर stability कितना है? I would equate stability as laziness. अगर आप 18 साल के हो और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, parallelly develop a skill that makes you employable. Okay, आप solely अभी से यूपीएससी पे मत एफर्ट डालो। तो थोड़ा एंटी नेशनल ही लगेगा मुझे कि 10th क्लास के बच्चे को अगर आप यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो, तो उसमें से कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता था जो इंडिया का इलॉन मस्क बन सकता है, और उसमें से कोई बिल गेट्स बन सकता था, कोई कल्पना चावला बन सकती थी। एक लड़की आई थी, तो शी वॉज फ्रॉम IIT बॉम्बे। शी बेसिकली was earning somewhere in the range of 80 to 90 lakhs. She was pressurized by her parents to quit the job and to prepare for civil services. Welcome to the second inning stories, the podcast where we'll be talking about the career beyond UPSC. The podcast where we'll be talking about how you can make use of your preparation, how your preparation is going to help in building up a good career of yours. So even a fresher also can listen to this podcast and can take ideas जहाँ से आप अपना एक अच्छा career बना सकते हैं. Because after 2026 prelims, every aspirant is thinking whether this preparation is going to be productive for them. Some people are changing their strategies, changing their timelines, and some of them are even changing their careers. And to discuss about the career opportunities and the plan B, we have today with us Karandeep sir, who is a mentor, who is a teacher, and who is a friend of the aspirants. He has been teaching anthropology from or for almost a decade now. एंड स्टूडेंट्स जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, एग्जाम्स कैसा आया है, पेपर में कैसे प्रिपेयर करना है, दे ऑलवेज गो टू करणदीप सर बिकॉज फॉर देम करणदीप सर इज देयर मेंटर, ही इज देयर गाइड. So today we will be asking him about the plans, about the career options that one can choose once they prepare for UPSC और उसके बाद उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए. First of all, I would like to welcome Karandeep sir. Sir, welcome and thank you for giving us your time today. Thank you, Pooja, for having me here. Sir, in that roundtable discussion that we did, you actually talked about UPSC. You said that how the paper was, and many aspirants they related with you. उनको लगा कि आपने उनकी दिल की बात सुन ली है. They were actually supporting your views as well. So आप why was that? मतलब ऐसा कुछ आपका पर्सनल भी कुछ रहा कभी यूपीएससी में, आपको भी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला when you were preparing? What was your journey? Fortunately for me, I wrote 4 mains, 14, 15, 16, 17, and 2 interview in 16, 17. And मेरे केस में प्री ऐसा कभी रहा नहीं, ऐसा never ever it has been like this. In fact, 2016 का जो प्री था, that was I got around 142 marks in GS paper 1, and CSAT में 154 marks थे, and that was a very easy paper. Okay, मतलब उस साल का कट ऑफ भी I think 110-12 के आसपास गया था. I don't remember exactly what was the cut off. So this is and as long as I know, means जब से मैं इस जर्नी में हूँ, being an aspirant, being a teacher, पेपर कभी ऐसा था ही नहीं. And uh, it was not about the toughness. Tough paper banana, UPSC has all the right to make tough paper. They can check the concepts, they can check the understanding, application part. But this paper was neither of them. Neither it was tough, nor it was checking any kind of concept, understanding, analysis, nothing of that sort. It was an absurd paper, I would say. कि एक mindless experiment था जिसका कोई logic ही नहीं था, जो शायद कभी repeatable भी नहीं होगा, और ना ये किसी का लॉजिक चेक कर रहा है, ना ही किसी की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, ना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, ना ही साइकी चेक कर रहा है. एंड आई डोंट थिंक कि यूपीएससी विल मेक सच पेपर अगेन, आई बिलीव.
सर, इफ यू टॉक अबाउट योर जर्नी, यूपीएससी जर्नी से पहले आपका भी ड्रीम यूपीएससी ही था, बिकॉज टुडे वी आर सीइंग स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट गॉट इनटू द कॉलेज, देयर ड्रीम इज अपीयरिंग फॉर दिस एग्जाम, देयर ड्रीम इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपकी जर्नी कैसी रही? मेरे केस में यूपीएससी वाज नेवर एवर माय एक्सपेक्टेशन और माय कभी कोई करियर टारगेट यूपीएससी दूर दूर तक नहीं था। मतलब आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माय कॉलेज। मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स में तो आई बेयरली हैव पास्ड। एंड रियली? कॉलेज जाने में मतलब मेरी अटेंडेंस हमेशा शॉर्ट रहती थी, तो काइंड ऑफ द रिबेल काइंड ऑफ ए किड। So, but and I got placed in a company, Nestle India. So I worked there for a few months, Hmm. and then I was not liking the job, and due to some other reasons, I thought that I should quit the job. Hmm. And अब जॉब क्विट करनी थी, तो मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल के क्विट करें, बिकॉज आई जस्ट कांट क्विट द जॉब एंड डू नथिंग. So then everybody else was preparing for civil services and all. So I thought that कि this might be a good reason, a good excuse that I can अच्छा. give to my parents हाँ. कि चलो यार यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसी बहाने दिल्ली जाने को मिलेगा. So Oh. that's why I decided to quit the job, come here, prepare for UPSC. It was never my career goal. So you did BTech, right? Yes. As a graduation. Okay. After that आपने क्योंकि हम यहाँ पर plan B और other career opportunities की बात करते हैं, तो you said that you got placed into Nestle. अगर somebody, क्योंकि सबको आपका रीजन यूपीएससी डिफरेंट था, बट अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहो फॉर आफ्टर ग्रेजुएशन, इफ दे कंटिन्यू विद द प्लेसमेंट्स दैट दे गेट, वहां पर आपको क्या लगता है, आर इज इट प्रोडक्टिव फॉर अ पर्सन हु हैज डन बीटेक? नहीं, ये कहना कि किसी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हर किसी की अपनी डिसीजन है. एंड इफ एनीबडी इज एक्साइटेड टू वर्क फॉर द नेशन और से डू सम काइंड ऑफ सिविल सर्विसेज, और या इसमें अपना करियर खोजना चाह रहे हैं, तो ही और शी इज वेलकम टू कम ओवर हियर. ओके, एंड डेफिनेटली दे शुड ट्राई. बट मेरा ऐसा मानना है कि इसमें एफर्ट लगाते लगाते आप ऐसी जगह मत पहुंच जाओ जहाँ पे देर इज नो रिटर्निंग बैक, और यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू एग्जिट. और तो वो वाली प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ऐसा है कि पीपल लीविंग वेरी हाई पेइंग जॉब एंड से, और से पीपल स्टेकिंग देयर एंटायर करियर जस्ट ऑन दिस सिविल सर्विसेज व्हिच हैज अ वेरी मिनिमल चांस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि ये चीज़ों में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है. यू शुड मीन्स अगर आपके घर से फाइनेंशियल बैकअप ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट्स इज गुड. And if you are like, if you don't have a good backup, then after 2 attempts you should start looking for some alternatives. I'm not saying कि आप altogether छोड़ दो, but full fledged तैयारी को थोड़ा avoid करना चाहिए. You should start looking for some backup, क्योंकि and that backup can be some other government jobs or maybe some freelance private jobs, anything. राइट, क्योंकि 2026 के प्रीलिम्स के बाद मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स दे आर डाउटिंग वेदर दे शुड बी कंटिन्यूइंग दिस जर्नी, और अगर नहीं करना चाहते तो क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है. समबडी हु हैज गिवन 6 years टू दिस प्रिपरेशन, किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट भी था, एंड दिस अनप्रिडिक्टेबल पेपर मेड द लाइफ बिट कंफ्यूजिंग. नाउ दे डोंट नो, दे डोंट सी द क्लैरिटी अभी कि क्या करना है. इफ इट आस्क यू, यू बिकेम अ टीचर आफ्टर योर यूपीएससी जर्नी, आपकी टीचर बनने आपने कैसे सोचा दैट यू वांट टू बी अ टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? No, it was never ever my plan. Say whatever I have been doing since 2013, since I passed my college, it has never been on my plan कि मैं शायद civil services की तैयारी करूँगा. It was never my plan to become a teacher. Neither I applied at any place to become a teacher. So basically, there was a case in when one of the reputed coaching institute. So they were actually launching a course on anthropology, and they wanted some fresh face, or say they didn't wanted anybody from the market to be launched. And one of my friend who was working there, he called me and he says that they are looking for a fresh face. If you want, if you are interested, you can come and give the demo. I gave them the demo and they liked my demo, and I didn't get the time also to think. Within 1 week my course was launched and I became an anthropology teacher. So it was never that I made any kind of applications. I put up some my resumes or कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं किया. Even I have not worked in content or any other role in any other coaching. My first role or first job was being a teacher of anthropology. That's it. I remember my first lecture. सो आई थॉट दैट कि जो पढ़ा है, मेरे 300 से ऊपर 2 बार स्कोर आ चुके थे, तो मेरे को लगा जो मैंने पढ़ा है वो मैं सीधे क्लास में जाके बोल दूंगा. और आई प्रिपेयर्ड अ लेक्चर एंड आई वेंट टू माय फर्स्ट क्लास.
and whatever I have read, or say the same topic that I wanted to explain, I was able to explain it in hardly 50-55 minutes, or and then some of the discussion and doubt that hardly took 10 minutes. So मेरी क्लास 1 घंटे 5 मिनट में खत्म हो कितने गई. स्टूडेंट्स थे इस क्लास में? 15-20 स्टूडेंट्स वर देयर. ओके। सो 1 घंटे 5 मिनट में मेरी क्लास ही खत्म हो गई. तो देन आई रियलाइज़ कि शायद ऐसे तो मैं 2 घंटे लेक्चर भी नहीं प्रिपेयर कर सकता. मतलब एक एक टॉपिक को जो मुझे लग रहा था कि 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, बट वो मेरे को पहली क्लास में ही शॉक लगा कि 1 घंटे में वो खत्म हो गया. सो नेक्स्ट क्लास आई आई डिसाइडेड कि आई विल बी रीडिंग, बट अब तो क्लास लॉन्च हो चुकी है, क्लास शुरू हो गई है, तो अब कब रीड करोगे? तो आई यूज्ड टू एंड माय क्लास. मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती थी, मेरी क्लास साढ़े 10 बजे खत्म होती थी. From 12 to say evening 6, I used to prepare the content of my class that has to be given to the next class. And then from evening 8 to रात के 3 बजे तक I used to read. And then 3 बजे से 7 बजे तक मैं सोता था. So that was I did for my first batch. Okay, क्योंकि it was on a very short notice that I had to prepare, राइट, and मेरे राइट। को कोई experience भी नहीं था, तो that's how I started to prepare. इफ यू टॉक अबाउट करियर इन एडटेक सेक्टर, अभी यहाँ पर अगर किसी एस्पिरेंट को अपना करियर बनाना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एन एस्पिरेंट? सी आज के टाइम पे आई बिलीव कि दैट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मतलब ओके, ये तो आप उसके साथ कर सकते हो. सेकंड, आप बहुत सारे मतलब साइड जॉब्स कर सकते हो सेम इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पे यू कैन बी कंटेंट मेकर, यू कैन बी एन एवेलुएटर. ओके, सो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू कैन गो फॉर दैट. ओके, और अदर देन दैट आज के टाइम पे एआई ने नॉलेज को इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया है दैट यू कैन प्रिपेयर सम एम्प्लॉयबल स्किल्स. मे बी वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हो, मे बी आप वीडियो मेकिंग सीख सकते हो, जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट के लिए यूज हो सकते हैं. यू कैन लर्न क्रिएटिंग एड फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट्स शूट करना आप सीख सकते हो. देन वेबसाइट बनाना आप सीख सकते हो. ओके, और डेटा एनालिटिक्स, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब इतनी सारे एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं राइट। that you can learn within 2-3 months. Okay, and इसके कई सारे courses free of cost हैं, and some of the paid courses are also available, and that will give you a decent job, a freelance job, maybe approximately 50 to 60,000 a month आपको easily मिल जाएगा. Now one thing that I would like to tell in this regard कि हम जब कोचिंग में भी यहाँ पे या एज ए कंपनी भी काम करते हैं, तो आई टेल यू कि जॉब्स हमारे पास भी बहुत सारी हैं, बट व्हाट वी लैक एक्चुअली इज द स्किल्ड पर्सन. ठीक है, हमारे पास इन सब काम के लिए बहुत सारी जॉब्स है, बट वी डोंट फाइंड स्किल्ड पर्सन. सो अगर आप में से कोई भी इस टाइप की स्किल्स लेके अपने आप को सो ट्रेन करे, सो इन दैट केस एक फ्रीलांस जॉब दैट माइट टेक 3-4-5 hours of your day, that can actually get you like a decent amount of money, that can sustain you for maybe आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है वो पूरी राइट, राइट, कवर अप कर क्योंकि देगी, फाइनेंस कर फाइनेंशियली देगी. ऑल्सो ये प्रिपरेशन काफी ड्रेनिंग होता है। वन डेफिनेटली. 3-4 साल दे दिए। इनफैक्ट इन द बिगनिंग ऑल्सो समटाइम्स पेरेंट्स आर वेरी रिलक्टेंट टू सेंड द किड टू दिस सिटी एंड इस कोचिंग में बहुत पैसा लगता है और ऐसा, तो वो सस्टेन करने के लिए भी आई थिंक दे कैन वर्क ऑन देयर स्किल्स एंड दे। फाइनेंशियल ड्रेन तो मतलब इट्स बट ऑब्वियस. आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, द एग्जाम इकोसिस्टम इटसेल्फ इज ए पैरेलल इकोनॉमी दैट इज रनिंग इन इंडिया. ओके, मतलब राइट, अनफॉर्चुनेटली आई एम ए पार्ट ऑफ इट, बट I don't have any hesitation to accept this fact that कि this is how the ecosystem has been created. Okay, so आपके limited number of colleges हैं, say from after 10th या 12th, आपको ग्रेजुएशन के लिमिटेड नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं. आपकी डेमोग्राफी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है. ओके, एंड इन दैट केस एवरीबडी इज कम्पीटिंग फॉर इट, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, एंड तो वहाँ पे डेफिनेटली द वन हु हैज़ एन एज ओवर अदर्स विल बी एबल टू गेट दैट सीट. तो वहाँ पे कोचिंग्स का रोल तो आ ही जाता है. एंड देन द कोचिंग्स आर चार्जिंग लाइक वट एवर दे वॉन्ट, एंड देर इज नो कैप ऑन इट. एंड I'm accepting this because we are being a part of the ecosystem. I realize that there has to be some kind of a cap, there has to be some kind of regulations on the coachings also. राइट, राइट, At the same time, rental, इतना ज़्यादा कुछ कुछ भी अनरेगुलेटेड रेंटल्स है, एंड कोचिंग्स की भी इसमें गलती नहीं है. जहाँ पे हमारे बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर कॉस्टिंग अस लाइक एनीथिंग, एंड अल्टीमेटली द एंटायर बर्डन फॉल्स ऑन द स्टूडेंट्स और द स्टूडेंट्स फैमिली. हाउसेज रेंट्स आर सो सो मच, सो मच। एनॉर्मसली हाई. कोई भी रेगुलेशन नहीं है अब, लेकिन हाउस ओनर्स की भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हाउसेज प्राइसेस आर सो हाई, and in that case somebody who has bought a house at so much of a cost,
definitely will have to take this much of rent. So this is the ecosystem that has been created. Ultimately, the entire burden falls on the student's family. क्या घर से भी प्रिपरेशन हो सकता है? अगर आपके मतलब बिल्कुल हो सकता है और करते भी हैं लोग, मतलब ये तो बहुत बहुत बड़ा फोमो है कि दैट You should come प्रिपरेशन to शुड बी Delhi. कमिंग शुड बी हैपनिंग ओनली इन दिल्ली। ये तो बहुत बड़ा फोमो है, मतलब इनफैक्ट 2020 के बाद Right, after uh, COVID. हाँ, मतलब एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मेंटरशिप अवेलेबल है, हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। सो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी पॉइंट कमिंग टू दिल्ली ऑल्सो। अगर आपको कहीं से भी फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो इन दैट केस मुझे लगता है कि दिल्ली आने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज रेंट्स आर वेरी हाई, द क्लासेस कॉस्ट आर वेरी हाई, डेली एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। एंड सर एटेक सेक्टर में अगर हम जॉब की बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कितना है? इफ एस्पिरेंट हु हैज अटेम्प्ट्स खत्म हो गए हैं, अब नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग देयर करियर हियर ओनली इन दिस सेक्टर। See, one thing that I want to say कि stability, this is one of the, I would equate stability as laziness. Okay, so मतलब ये stability पे ज़्यादा focus नहीं करना चाहिए, but I believe कि अगर आपके अंदर क्षमता है learn करने की, if you are not hesitant of doing hard work or say innovating or updating yourself, so आप किसी भी sector में हो तो you will definitely basically have a decent amount of position और salary आपके पास आती रहेगी. It's just that कि when we feel that कि some kind of a skill that we learn today that should give us some money or say that should give us the income for maybe coming 10, 20, 30 years, देन इसको अगर हम स्टेबिलिटी बोल रहे हैं तो आई वुड से दैट ये तो लेजीनेस वाली बात है कि आप इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में यू फील दैट कि समथिंग दैट आई हैव लर्न फॉर वन दिस ईयर एंड शुड गिव मी और शुड सर्व मी फॉर द नेक्स्ट 30 years, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। एंड मोर ओवर वी आर सीइंग दैट टेक डिसरप्शन, एआई जितना आ रहा है, तो द स्किल्स आर गेटिंग आउटडेटेड विद इन ए ईयर और टू, तो आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और अगर आप अपडेटेड हो, आप टाइम के साथ लर्न कर रहे हो, यू आर इनोवेटिंग, सो इन दैट केस स्टेबिलिटी आपको किसी भी सेक्टर में मिलेगी, नॉट जस्ट द एडटेक सेक्टर। Right. So if someone who's been your student or who has taken anthropology as their optional, now they have exhausted their attempts also, they make a career out of anthropology also? Because people feel कि मैंने ये ऑप्शनल ले अगर लिया। इंडिया में देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स सिर्फ आपको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज वगैरह में मिलेगा, दैट यू कैन गो फॉर मास्टर्स, नेट जेआरएफ, पीएचडी वगैरह करके आप यू कैन, एंड दैट टू वेरी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज आर देयर जहाँ पे आपको एंथ्रोपोलॉजी से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। पर एंथ्रोपोलॉजी का इंडिया से बाहर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, मतलब वहाँ पे शायद आपकी ये नॉलेज, आप अगर एमबीए करते हो या फिर आप कोई भी और डिग्री लेते हो दैट बेसिकली गिव्स यू एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी पर्टिकुलर प्लेस, this anthropological knowledge can actually help you achieve heights. Basically it will give you some new insights जो normally एक नॉन एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड वाले बच्चे को या बंदे को नहीं आएगी। ओके, और आपका इट्स नॉट अबाउट आई एम प्रेजिंग माय सब्जेक्ट, इट्स जस्ट दैट कि आपका पीएसआईआर भी है, सोशियो भी है, हम्म। तो वन सब्जेक्ट दैट यू हैव रेड इन सो मच ऑफ डिटेल डेफिनेटली विल गिव यू सर्टेन इनसाइट्स। ओके, जो शायद जो उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता वो नहीं है, वो दुनिया को देखने का एक नज़रिया ही बदल देता है। एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, बी इट पीएसआईआर, बी इट सोशियो, बी इट एंथ्रो, बी इट साइकोलॉजी, पबैड, व्हाटएवर, और हिस्ट्री। ओके, एंड डेफिनेटली आप किसी भी जॉब में जाओगे आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे, हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा इनसाइट्स इन एनी काइंड ऑफ जॉब, बी इट मार्केटिंग, बी इट सेल्स, और बी मेकिंग सम वीडियोज और से टेक जॉब, डेफिनेटली आपको बाकियों से एज देता है। But can an aspirant mention this UPSC preparation in their CV? मतलब आई थिंक मेंशन करना चाहिए, बट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इन दिस केस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। वहाँ पे तो जो रिक्वायर्ड स्किल है उसी पे काम चलेगा। मेंशन करने नहीं करने से आई डोंट थिंक इट वुड मेक एनी डिफरेंस, नीदर पॉजिटिवली नॉर नेगेटिवली, आई बिलीव। So I am going to ask you giving you three age groups जिनके बारे में आपको advices देना है. What advice would you like to give to one to a student who is 18 years old and wants to prepare for UPSC? देखिए, अगर आप 18 साल के हो और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आई हैव ए सिंसियर रिकमेंडेशन फॉर यू कि डेवलप ए पैरेलली डेवलप ए स्किल दैट मेक्स यू एम्प्लॉयबल। ओके, आप सोनली अभी से यूपीएससी पे मत एफर्ट डालो। ओके, आपको यूपीएससी पढ़ना है, ठीक है, आप उसके लिए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, स्टार्ट गेटिंग फेमिलियर विद एनसीईआरटीज एंड ऑल,
बट आपका एक लार्जर चंक आपका एक स्किल डेवलप करने में लगना चाहिए कि आप एआई सीख रहे हो या वीडियो एडिटिंग और से फ्रीलांसिंग एनी काइंड ऑफ जॉब्स जो बेसिकली दैट मेक्स यू एम्प्लॉयबल और एनी काइंड ऑफ स्किल्स दैट मेक्स यू एम्प्लॉयबल, आप पैरेलली उसको भी सीखते रहो एंड एट द सेम टाइम यू यू स्टार्ट योर जर्नी इन यूपीएससी विदाउट दैट, बिकॉज आप सोनली अपने आप को उसमें पुश इन कर देते हो एंड यू एक्चुअली गिव लाइक अपने करियर का एकदम फाउंडेशन पीरियड 18 टू से 25-26 आप कोई स्किल ना लर्न करके आप सिर्फ यूपीएससी को दे रहे हो एंड इफ यू डोंट क्वालिफाई यू हैव नथिंग टू गो बैक, ओके, राइट। unless and until you have a family business or some kind of a fortune to inherit from your parents. और अब तो इनफैक्ट देर आर सम प्लेसेस एंड सम इंस्टीट्यूट्स विच आर गिविंग कोचिंग्स टू इनफैक्ट 10th का स्टूडेंट टू द 9th का स्टूडेंट आल्सो दे आर मेकिंग एनसीईआरटीज एज अ बेस एंड इज इट ओके फॉर अस? I'm not very much satisfied or say in line with this kind of a model, राइट। because एक तो 10th क्लास के बच्चे को यही नहीं पता कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है, एंड देन एब्सोल्युटली। क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ ड्रीम्स दैट यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर और डीएम और समथिंग। आप हमारे यूथ की क्रिएटिविटी को एकदम किल कर दे रहे हो। मतलब उसमें से कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता था जो इंडिया का इलॉन मस्क बन सकता है, और उसमें से कोई बिल गेट्स बन सकता था, कोई से कल्पना चावला बन सकती थी। बट व्हाट वी डिड बेसिकली वी गेव देम ए सिंगल ड्रीम कि नहीं यार, सक्सेस का मतलब आईएएस है, डीएम बनना है या राइट। एसपी बनना है। तो आप बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी को किल कर रहे हो, जो हमारे लिए फ्यूचर में मतलब इट्स आई वुड से दैट इट्स इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द नेशन इटसेल्फ, कि वो थोड़ा सा मैं आई कैन इफ आई कैन बी एक्सट्रीम तो थोड़ा एंटी नेशनल ही लगेगा मुझे कि 10th क्लास के बच्चे को अगर आप यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो तो। Right. And what advice would you like to give to a 24 or 25-year-old aspirant who has exhausted 2-3 attempts of theirs और अब उनको लग रहा है कि आगे क्या करना चाहिए? सो आफ्टर समबडी हैज एग्जॉस्टेड 2-3 अटेम्प्ट्स, ठीक है, अगर और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली अगर आपकी एक बार भी प्री नहीं निकला है, सो आई आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं उनका एक बार भी प्री नहीं निकला है। सो फॉर देम आई हैव एडवाइस कि आप पैरेलल एग्जाम्स देखना शुरू कर दो, ओके, से बी इट से वन डे एग्जाम्स लाइक बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, और से नाबार्ड, आरबीआई, एसएससी, सो वन डे एग्जाम्स आप थोड़ा सा देखना शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं एप्टीट्यूड वगैरह इस टाइप का वन डे एग्जाम में आपकी एप्टीट्यूड नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई, इन दैट केस जस्ट गो फॉर सम काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ पैरेलल स्किल डेवलप करो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं दैट कैन गेट यू सम काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, ओके। उसके बाद इफ़ यू स्टिल हैव दैट एनर्जी और से एंथुजियाज्म लेफ्ट, देन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज दिस इज ए टर्निंग पॉइंट में भी। अगर 2-3 साल लेट हो जाओ तो देन आप आपके ऊपर एक सोसाइटल स्टिग्मा लग जाता है कि दैट Right. यू हैव क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड एज जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड था कि दैट यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, ओके। बट अब वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो और यूपीएससी में भी कुछ खास नहीं हो रहा, तो आई थिंक कि सही टाइम पे you should be like parting yourself, or say you should dedicate a part of your energy towards developing skills that makes you employable. And the advice to a 29 or 30-year-old aspirant who maybe are in their final attempts of theirs and they still want to appear for the exam. See, a lot of people might not agree with me because हर साल ऐसा कोई ना कोई केस आता है कि जो आखिरी अटेम्प्ट में या लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाता है, एंड दैट टू विथ वेरी ग्लोरियस रैंक एंड ऑल। बट अगर आप 29-30 इस एज में आ गए हो एंड देन यू आर स्टिल इन दैट फेज, लेट गो ऑफ ग्रेसफुली, ओके, एंड डोंट टेक इट लाइक एज अ फेलियर। Hmm. आप लेट गो करिए ग्रेसफुली कि ठीक है, अब मैंने अपना एफर्ट दे दिया, मैंने अपनी पूरी एनर्जी दे दी एंड इट्स नॉट वर्किंग, सो कोई बात नहीं। एंड आप ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो? व्हाट इज अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स जो ये सपना अपने बच्चों के साथ देखते हैं एंड समटाइम्स इट्स अ ड्रीम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड हु फील कि एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, तूने तो यूपीएससी की तैयारी की थी, अब व्हाई दिस एग्जाम? बिकॉज दे थिंक कि आरबीआई, एसएसबी, नाबार्ड ये सब एग्जाम्स बहुत अलग हैं यूपीएससी से और बहुत नीचे भी हैं कहीं ना कहीं। हमारी सोसाइटी ऐसा सोचती है। ये थोड़ा-सा ना मतलब आई हैव हर्ड संजीव सान्याल सर, हम्म। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे टू प्राइम मिनिस्टर, और मे बी आई एम नॉट अवेयर अबाउट द पोस्ट, आई माइट बी रॉन्ग देयर। सो आई बिलीव कि यार मतलब सिर्फ़ सिविल सर्विसेज़ के लिए ड्रीम करना एट ए सो यंग एज और पेरेंट्स के लिए वो सब करना,
आई थिंक थोड़ा-सा पॉवर्टी ऑफ कल्चर है, पॉवर्टी ऑफ ड्रीम है ये। मतलब वी कैन बीइंग ए सो यूथफुल नेशन, हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन हैं वी कैन ड्रीम ऑफ। ओके, we can have like n number of other things that we can do or we can think of our children to be doing, but पता नहीं शायद ये सिविल सर्विसेज या आईएएस आईपीएस की ही ड्रीम क्यों रह जाती है। तो मेरा मतलब शायद आई थिंक वो हमारे एंड से भी गड़बड़ी है कि हमने शायद कुछ रोल्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है कि मे बी आप आईएएस हो या आईपीएस हो तभी आप सक्सेसफुल हो। We don't glorify the entrepreneurs in the society. We don't glorify the doctors. We don't glorify the Right. CAs, the lawyers. Okay, so आप लॉयर बन रहे हो, अच्छे लॉयर हो, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल के मेंबर हो, बट nobody actually glorifies that. But yes, definitely if you qualify an exam, maybe SSC का या फिर UPSC का, तो definitely there is a glorification, Right, glamorization right. बहुत ज़्यादा है। And their SSC, RBI equally competitive. I think even more than that. UPSC से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा है skills. ना कि आईआईटी में अगर किसी की 50 लाख की या 70 लाख रुपए की सीटीसी पैकेज या लग जाता है तो वो घर पे एकदम साइलेंटली वापस आ जाता है। ओके, इवन द नेबर्स डोंट नो, और नेबर्स को पता भी है तो भी दे डोंट एक्चुअली केयर एक्चुअली, और दे मतलब ऐसा कोई रिस्पेक्ट ऐसी सोसाइटी में नहीं है कि ही अर्न लाइक 50 या 70 कभी लाख का कभी कभी पैकेज। न्यूज़पेपर में एक हाँ, कटिंग दिख जाता है कभी कि वो इसके बस उस बच्चे को कॉलेज की गूगल. एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा. कि हमने हमने ऐसा प्लेसमेंट दिला दिया, बट हम सोसाइटी Usually it एज सच doesn't happen. अप्रिशिएट नहीं Right, करते हैं। right, right. एंड दूसरा लेकिन वही वो बच्चा आईआईटीएन होके आईआईटी में टॉपर रह के कंप्यूटर साइंस पढ़ के एंड देन आईएएस बन जाता है, तो देन द वो सोसाइटी प्रेजेस हिम ग्लोरिफिकेशन लाइक होती है गॉड। वो तो. ओके, Right, एंड द right. एंटायर सिटी बेसिकली स्टैंड्स। We saw recently यस, after the डेफिनेटली। results there were some सो clips. वही है कि हमने कुछ पर्टिकुलर करियर गोल्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। Hmm. मेरे को कोई आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग दिस करियर गोल, बट आई आई बिलीव दैट कि अदर करियर गोल्स शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड, अदर करियर गोल्स शुड आल्सो बी गिवन दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी, सो दैट Right. लोग डाइवर्सिफाई तो करें। अब तो Actually. क्या हो गया कि आपको सोसाइटी की आंख में इज्जतदार होने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए आपको यूपीएससी निकालना बहुत जरूरी, दैट्स अ टैग दैट यू नीड टू Right, right. हैव। Do you also feel that when parents comes to you also for some advice और वो भी आते हैं mentorship के लिए parents students के साथ, तो आपने कभी कुछ ऐसा ऐसी कोई weird बात सुनी जिससे आपको लगा हो यार क्या कर रहे हैं ये अपने बच्चे के साथ? हाँ, बहुत सारे केसेस में, मतलब एक लड़की आई थी तो शी वाज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड हाँ. शी वाज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट में काम करती थी। Okay. ओके, एंड शी बेसिकली वाज अर्निंग समवेयर इन द रेंज ऑफ 80 to 90 lakhs। ओके, एंड दैट टू इन इंडिया। ओके, so a very My hefty God. package, but she was pressurized by her parents to quit the job and to prepare for civil services. Reason that her brother was in civil services and he qualified it in the very first attempt, and that's why the parents wanted her to quit the job and to prepare for civil services, which they came and asked me कि, and उनका भाई मेरा स्टूडेंट था एंथ्रो का, so that's why they came and consulted me. So I was quite shocked कि Right. मतलब she's earning well, she has a great career over there, and maybe she might become the next Satya Nadella. Okay, so she might be the one. So why do you want to push her towards this kind of job? But वो बोलते कि सर स्टेबिलिटी नहीं है। मैं क्या 80-90 लाख रुपए में स्टेबिलिटी नहीं है तो then Right. where do you find the stability? So this is the thing that कि the idea of stability that एक बार एक नौकरी लग गई तो वो जिंदगी भर रहेगी, and that makes people more attracted to this kind of a Is job. she preparing now? Yes. Okay. Okay. Sir, according to you, then हमने अभी discuss भी किया about the second innings that one should take after UPSC. According to you, what does a successful second innings look like? See, anything I would relate success only to happiness. अगर आप किसी भी innings of life में, maybe be it the first inning, be it the second, or maybe the last inning of the life, if you are happy, Right. ओके, मे बी यू डिस्कवर्ड योर पैशन, जो मुझे करना था वो आपने डिस्कवर कर लिया, and आप शायद उसमें काम कर रहे हो या उसमें कुछ अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट्स अ सक्सेसफुल इनिंग। ओके, बट शायद नॉर्मली क्या हो जाता है कि हमारा यूथ खत्म हो जाता है यूपीएससी की तैयारी करते करते, और उसके बाद शायद हमारे पास चॉइसेस नहीं बचती, सो द चॉइसेस आर Yes, नॉट of अवेलेबल, और course. मे बी After वी 30 तो कई हाँ, government exams के लिए भी choices so नहीं बचती. so उस केस में we don't choose, but we just have to accept whatever comes our way. Okay, so
बहुत सारे लोग के पास जो ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस बचते नहीं है, जो भी है अब उनको बस करना होता है जस्ट टू सस्टेन देमसेल्फ। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट कि अगर आप इस जर्नी में जितना भी टाइम स्पेंड करो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आपको पसंद क्या है, आप करना क्या चाहते हो, एंड मे बी शायद पैरेलली अगर आप उसको डिस्कवर कर सको और उस पर कुछ भी कर सको, so at certain point of time, be it the second inning of life or the third inning of life, you will be at peace and you will be happy. So, if we want to summarize this conversation, because it started with a career in the edtech sector or developing some skills also alongside preparing for this exam. So, आप कैसे इसको summarize करना चाहोगे? With the help of, you also talked about AI also, that one should learn some skills. आज के टाइम पे एआई ने नॉलेज को बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आप कोई भी स्किल सीखना चाहो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव ए लैपटॉप, इफ़ यू हैव ए स्मार्टफोन एंड मे बी सम फ्यू थाउजेंड्स फॉर सब्सक्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली लर्न एनीथिंग और एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ओके, आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। तो मेरा बस इतना कहना है कि यार, दुनिया में आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना पैसा है जितना आज से पहले कभी नहीं था, एंड इट्स ईज़ी टू अर्न। It's all just that you have to identify the opportunity and do something so that you can earn that money. Okay, and that's why जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहो, तो just keep in mind कि that there is other definitions to success. Only succeeding in civil services, only becoming an IAS officer is not the definition of success. और भी तरीके हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप देश को बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हो। सो Right. जस्ट डेवलप दैट पैरेलल स्किल्स, एंड जब याद रखना कि जब आपको लगे कि दिस इज इनफ, सो लेट गो ग्रेसफुली। ग्रेसफुली छोड़ने में कोई हार नहीं है, उसमें एक मैच्योर माइंड है, एंड यू शुड रियलाइज दैट दिस इज द लिमिट एंड दिस इज द टाइम आई शुड क्विट। So now coming to this no filter segment of ours, which is like a rapid fire round. So I'll ask you 5 questions and you just have to give the answers without any filter. Okay. If you could mentor your younger self again, what career advice would you give? आई वुड डेफिनेटली से दैट कि मुझे जो उस समय की स्किल्स थी उसके ऊपर थोड़ा सा सीखना चाहिए था। आई शुड हैव लर्नड इन्वेस्टिंग, आई शुड, बिकॉज दैट वाज द टाइम इंडिया वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आज के टाइम पे मैं देख रहा था कि अगर मैंने थोड़े से भी पैसे स्टॉक मार्केट में तब इन्वेस्ट किए होते, तो आई वुड हैव ए ग्रेट ग्रेट सेविंग्स राइट नाउ। ओके, सो शायद अगर मुझे उस समय अपने आप को यंगर सेल्फ को मेंटर करना होता, तो आई वुड हैव टोल्ड हिम द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अभी के लिए क्या चल रहा है जो आप बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जिनको रिग्रेट ना हो कि अभी क्या एआई के अलावा इन्वेस्टिंग? हाँ, इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ए गुड थिंग। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप, यू जस्ट नीड टू रियलाइज दैट न्यू अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, कहाँ पे दुनिया जा रही है। बायोटेक इज ए गुड गुड प्लेस। ओके। ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी इज अ न्यू एरिना जो ओपन अप हो रहा है, एंड वेरी रिसेंटली स्पेस एक्स का आईपीओ जो आया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि एकदम बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस वैल्यूएशन पे आया है। द फर्स्ट ट्रिलियनियर वो स्पेस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बन रहा है। सो स्पेस टेक्नोलॉजी इज द न्यू एरिना जहाँ पे आप सोच सकते हो कुछ भी करना। The second question is one anthropological thinker every aspirant must know who talks about life in a way. वन सो एक स्कॉलर हैं जो बहुत फेमस तो नहीं है, एरिक फ्रॉम नाम है उनका, ERICHFROM। ओके, सो ही इज द वन। ही, आई बिलीव कि आप अगर इनके बारे में पढ़ो, ही इज ए वेरी गुड फिलोसोफर, मतलब हु टॉक्स अबाउट व्हाट इज अबाउट बीइंग। ओके, मतलब इट्स लाइक कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग तरीके से बताते हैं, एंड ही इज टेलिंग यू कि आप कैसे सोशल नॉर्म, सोशल मीडिया को देख देख के आप यू आर ट्रैप्ड इन द सोसाइटी या सोशल गोल्स पे आप फोकस करते हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हो। सो दिस इज, आई बिलीव कि ही इज ए गुड पर्सन टू रीड, एंड अदर देन दैट, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एनी स्कॉलर, सो इंडिया की एक स्कॉलर हैं इरावती कर्वे। ओके, सो यू कैन रीड अबाउट हर, शी इज अ गुड पर्सनालिटी, शी इज अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी टू रीड, वेरी गुड ओपिनियंस, एंड बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया है, प्लस हर लाइफ जर्नी इज ऑल्सो फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, ओके, एंड फुल ऑफ स्ट्रगल्स। One habit that has changed your life. This is, I would recommend ki getting up early in the morning. I believe ki this is one thing that always has benefited me in most of the times. Okay, say Okay. I have not been a very good student, I have been a very average student throughout my, say, at least in my college life and in my 11th and 12th.
Okay, so but one thing that it was inculcated in me from my childhood is that I used to get up at 5 or 6 a.m. and even now also, even if I'm not up from the bed, but I'll be very much active by 6 a.m. at max. Okay, 6 बजे तक उठ जाता हूँ. तो मेरे को हमेशा ये रहता है कि कुछ भी नया सीखने का जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग ही रहता है. मतलब इट्स अ अच्छा. वेरी पीसफुल टाइम. कोई भी, मेरी बेटी नहीं जगी होती, घर में कोई शोर नहीं होता. आई फाइंड अ कॉर्नर इन माई हाउस टू रीड, टू वॉट एक्सप्लोर वट एवर आई वॉन्ट. सो अगर मुझे कल को कभी कुछ स्विच भी करना होगा तो दिस इज द टाइम, 6 से 9, जो वो सिर्फ मेरा टाइम होता है जब घर में कोई एक्टिविटी नहीं होती एंड आई कैन डू एनीथिंग. राइट. व्हाट अभी शायद मुझे इसका जवाब मिल चुका है, बट आई विल स्टिल आस्क, व्हाट करणदीप सर डज ड्यूरिंग हिज लेजर टाइम? अब मेरी बेटी है तो मतलब आई आई यूजुअली लव टू स्पेंड टाइम विथ माई डॉटर. ओके, तो मतलब आई थिंक मेरा लेजर टाइम ही उसी के साथ है कि सब कुछ, मतलब आई एम सीइंग हर ग्रोइंग एंड एक्सप्लोरिंग हर से आइडियाज, या वो किस तरीके से सोचती है, एंड सीइंग हर स्पीक और से एंड मेक न्यू वर्ड्स और से मेक न्यू सेंटेंसेस. एंड सो दैट्स माई लेजर टाइम. सबसे अच्छा टाइम मेरी जिंदगी का, दिन का वही रहता है. और कितना टाइम मिलता है पूरे दिन में वो? आई मैं चुराने की कोशिश करता हूँ कि जितना मिल जाए. तो कभी बहुत टाइम मिल जाता है, कभी सम डेज इज लाइक कि आधा 1 घंटा. नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन इज बिट ट्रिकी, थोड़ा टेढ़ा सवाल है. करियर इन एडटेक और यूपीएससी सीएसई? ये एडटेक, मुझे ये लगता है कि ये अगर एडटेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके है ना, तो आई डोंट सजेस्ट पीपल टू गो इनटू दिस करियर इन एडटेक. ओके, दिस इज इकोसिस्टम. आप चाहे यूपीएससी में आप, मतलब ये बेसिकली आपको मोटिवेट ही करेगा कि आप बाकी लोगों को इस एग्जाम के लिए मोटिवेट करो कि आप यूपीएससी करो या एसएससी करो. आपने पहले खुद किया है, एंड आप जब इसमें ही करियर देखने लग जाओगे तो यू विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर पीपल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम्स एंड ऑल. सो विच आई सजेस्ट कि नहीं होना चाहिए. एडटेक अगर आप करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि लाइक अपग्रेड जैसा कुछ है जो एम्प्लॉयबल स्किल्स दे रहा है, एम्प्लॉयबल डिग्रीज दे रहा है, तो दैट इज समथिंग दैट इज एडवाइजेबल. और अदर देन दैट एडटेक के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा कुछ है. मतलब इट्स लाइक हम कुएं के मेंढक की तरह सोच रहे हैं कि एडटेक बहुत बड़ी चीज़ है. कुछ नहीं है. आज के टाइम पे लाइक इनोवेशंस आर गोइंग ऑन, म्यूजिक है, फैशन है. So thank you so much, sir. I थैंक think यू पूजा the फॉर हैविंग मी. talk has been really good, and it's going to be very productive for the aspirants who will watch this, and for the non-aspirants and parents also. I hope they watch the podcast. थैंक यू पूजा, Thank थैंक you यू so फॉर हैविंग much. मी. हम कोई वन लाइनर टेक अवे, I enjoyed. I think sir also enjoyed. Only sir can tell. कोई एक ऐसी बात जो आप पॉडकास्ट में ना बता पाए वो अभी आप बताना चाहोगे? सबको ना अपना एक बैकअप बना के चलना चाहिए, बस इतना ही मैं कहूँगा.